चलिए जी स्टार्ट करें फिर। पीछे तो नहीं आएगा ना, तो हटा दो बोर्ड को, उधर ही रखो। Hello, it's a lovely good afternoon as always, and hope that each one of you are absolutely fine. So starting the proceedings of the day, of course the natural question you would love to ask is, sir, what is the actually topic which we are supposed to start in this particular session? So we have already completed, if you remember, actually the last one, actually we were doing preparation of the financial statement, and we had completed that. So quite obviously, so we will have to actually take up a new one today, and in this particular session we are going to pick up a very significant, very important and very formidable chapter, that is cash flow statement. You might be wondering actually why I'm saying actually that it's very formidable, it is significant and important. The reason is very simple. If you remember actually during our initial classes we had talked a lot about the cash flow statement, and we talked about the fact that this particular chapter is very vital, both not only from the point of view of accounts, but it also is very, very significant from the point of view of financial management, which you shall be actually having in your group too. So quite obviously it means actually that cash flow statement definitely commands value in the sense that you are going to have a question of it either in accounts or in financial management. So all the more it becomes a reason for you to actually pay more attention towards this particular chapter. As I said, it has got tremendous potential. Now, again, the main question is that sometimes students feel actually that they have done this particular chapter in their earlier sessions, in their earlier classes, so it's a little bit easy, but that is not the case in fact. So it is pretty tough at this particular level, not very important, not very what we call easy, so don't take it lightly. And secondly, we are also, along with this particular chapter, going to pick up what we call cash flow statement AS3 revised, if you remember. करेक्ट. सो वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे नाउ. तो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मेरे को एक और चीज कहनी है, वो ये कि रिस्पेक्टिव सेंटर्स में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स पहुंचा दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि नोट्स आपके पास पहुंच गए होंगे. और रिस्पेक्टिव सेंटर से मेरा यह भी निवेदन है कि फटाफट आप लॉग इन हो जाए सेस पर, जिससे कि बच्चों से हमारी बातचीत फटाफट हो सके और हमें पता लगे कि उनके पास नोट्स पहुंच चुके हैं या नहीं. जितने भी सेंटर से फटाफट लॉग इन हो जाए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, चाहे वो नेट से रिलेटेड हो. तो स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक आज के इस पर्टिकुलर सेशन में. तो पहले बेटे इसमें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली कुछ देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि इसके साथ साथ हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड भी देखना है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बिगनिंग हम करते हैं. फिर अब अगर आप लोग तैयार हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं. आइए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी चैप्टर है, आपने पढ़ा भी हुआ है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कह चुका हूं कि इस लेवल पे ये सिग्निफिकेंट चैप्टर है और इसमें कई चीजें हैं जो हमें ख्याल करनी होंगी. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमने टॉपिक स्टार्ट करा. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब आप सोच रहे होंगे सर आज विजुअलाइजर में आप क्यों क्लास ले रहे हैं. बेटे सुबह से क्लास चल रही है, तो इसमें बोर्ड में लेते लेते हमें भी थकावट हो जाती है. तो आजकल अच्छी बात यह है कि डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज हैं जिससे कि हम क्लास ले सकें. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक मैंने स्टार्ट करा. कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस टॉपिक के साथ साथ AS3 रिवाइज्ड भी साथ में हम कर रहे हैं. AS3 रिवाइज्ड, करेक्ट. सेंटर्स अभी तक लॉग इन नहीं हुए हैं, क्या बात है भाई.
ये सेंटर्स फटाफट लॉग इन हुआ करें, जिससे कि हमारे और तुम्हारे बीच में, मैंने कहा कि कुछ बातचीत हो सके, नहीं तो पता ही नहीं लगता कि बच्चे वहां पर मौजूद हैं या नहीं। सेंटर्स लॉग इन नहीं हो रहे भी, क्या बात है? सेंटर्स लॉग इन है मेरे पास, मैं ये वाले पेंसिल लिखता हूं। सेंटर्स लॉग इन नहीं हो रहे, क्या चक्कर, जरा पता कराओ। आइए जी, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से बेटे हमने स्टार्टिंग करी, और बिकॉज मैं थोड़ा शुरू में इसलिए धीरे धीरे रुक रुक के बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक आप सेस पर कोई पहुंचा नहीं है। आइए पहले हम जरा इसकी थ्योरी देखें। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आती है तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, हालांकि आप सबको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसमें हम क्या क्या करते थे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते थे। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए मीनिंग कैश का क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैश इक्विवेलेंट क्या है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किस तरीके से इस लेवल पे बनाई जाएगी। तो इन चीजों पे चर्चा करने के लिए मैंने लिखना शुरू करा, और आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें फटाफट। करेक्ट? और मैं साथ साथ मेरे को देखना भी पड़ता है कि स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। लिखे फटाफट बेटे। तो सबसे पहले तो लिखे काउंसिल of the Institute of Council of the Institute of Chartered Accountant of India यानी कि ICAI, Council of the Institute of ICAI issued AS3 revised where it is stated that, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसका तुम्हें ख्याल करना पड़ेगा, that cash includes, अब कैश में बेटे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। कैश इंक्लूड्स एक तो आपको मालूम होना चाहिए जब हम कैश की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कैश इन हैंड की बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड। करेक्ट? एक तो कैश इन हैंड। बी, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक का मतलब है कि आप बैंक से अपना पैसा कभी भी मांग सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। करेक्ट? उसके बाद कैश इक्विवेलेंस। जब हम कहते हैं कैश तो कैश में ये चीजें शामिल होती हैं, कैश इक्विवेलेंस। इसका मतलब अब हमें मालूम होना चाहिए कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या क्या होते हैं। करेक्ट? कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए जी, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंस, कैश इक्विवेलेंस, cash equivalents are part of cash as per AS3 revised, and are defined as, अब बेटे कैश इक्विवेलेंट को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है। आर डिफाइंड एज, ध्यान से देखें इसको, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड investments, short-term highly liquid investments that are readily converted into
that are readily convertible into known amounts and which are insignificant and which are subject to an insignificant risk of changes in value. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, लिक्विड इन्वेस्टमेंट हैं, यानी कि वो रेडीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट है। अब उसने ये जो सेंटेंस लिखा है, विच आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और मान लेते हैं ये रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ये कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकती हैं। तो पहले तो नोन अमाउंट क्या है? नोन अमाउंट मैंने 1 लाख लिखा है। अगर कन्वर्ट करके मुझे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं तो ये कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमने लिखी है उसी वैल्यू में अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब, वैसे नो डाउट हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 90 डेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं वो कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोई इन्वेस्टमेंट है वो 90 डेज के अंदर कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन जो अमाउंट उसके आगे लिखा था उतना अमाउंट हमें नहीं मिला, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी। अगर आपने 1 लाख की वैल्यू लिखी है, नोन अमाउंट 1 लाख है, और कन्वर्ट होकर के आपको 90,000 रुपीज मिल रहा है, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वॉट एवर वैल्यू यू हैव रिटन इट डाउन ओवर हियर, after converting the same you must receive the same amount. That is the significance of this line, subject to an insignificant risk of change in value. बात समझ में आई या नहीं आई? Is it clear to you or not? यहां तक क्लियर है? आइए जी थोड़ा सा आगे बढ़े। इसका मतलब यह है कि आपको कैश का मतलब पता लग गया, आपको कैश इक्विवेलेंट का मतलब पता लग गया। और ये सेंटर्स अभी तक लॉग इन क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? फटाफट पता करो जरा। ना लखनऊ ना लक्ष्मी नगर कोई भी अभी तक लॉग इन नहीं हुआ है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करती है कैश के इनफ्लोस को और आउटफ्लो को। तो फटाफट लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a summarized statement is a summarized statement showing sources of cash inflows and outflows. Of an enterprise during a particular period of time, during a particular period of time. तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक एंटरप्राइज के पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यहां तक देखने के बाद अब आपको एक चीज ये मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट भी आप फटाफट लिखें। every enterprise whose turnover exceeds 50 crores or whose shares or securities are listed or about to be listed in a recognized stock exchange must supplement its financial statements with cash flow statement। हमें मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी एंटरप्राइज के लिए ये जरूरी है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, लेकिन ऐसा केवल उन एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है, या जिनके शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं या लिस्ट होने वाले हैं। तो ऐसी एंटरप्राइजेस जिनको हम लेवल 1 एंटरप्राइज वैसे कहते हैं, हालांकि मैं अभी आपको लीगल जार्गन में नहीं ले जाना चाहता, तो उन एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करें। किसके थ्रू? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करें कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर कोई आपसे कहे कि बनाना किन एंटरप्राइजेस को जरूरी है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल लेवल 1 एंटरप्राइजेस को बनाना जरूरी है। आइए थोड़ा इसके आगे की चर्चा भी और करते हैं। मैं जरा इसमें लिख लूं कि ये पेज नंबर 1 है, मुझे बाद में अपने रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ते हैं ना। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अब और क्या पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ और क्या पढ़ेंगे, आइए फटाफट लिखें। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। Preparation of cash flow statement. Preparation of cash flow statement. प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, क्या मुझे बताने की जरूरत है? अरे जरा पता करो ये सेंटर्स लॉग इन क्यों नहीं हो रहे हैं अभी तक। लिखें बेटे साथ साथ। वैसे तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स movements under different heads,
आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन फिर भी अंडर डिफरेंट हेड्स, नेमली हमें मालूम है ना कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हेडिंग्स के अंदर बनाते थे। कौन कौन सी हेडिंग्स आपको मालूम ही है? एक तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Cash flows from investing activities, 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 cash flows from financing activities, cash flows from financing activities। तो आप 3 हेडिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया करते थे। वही 3 चीजें मैंने यहां पर लिखी, इजंट इट और नॉट? सम ऑफ these types of some of these types of cash flows reflect net increase or decrease of cash and its equivalent। आप इन तीनों को ऐड कर करके फाइनली आपके पास बेटे क्या फिगर आती थी? इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास यही आता था ना कि नेट इंक्रीज इन कैश या नेट डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो वही चीजें अभी हमने लिखी, अभी तक फिलहाल हमने कोई नई चीज नहीं लिखी है। आइए जी आगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जरा उसकी चर्चा कर लें। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, operating activities, operating activities, operating activities में लिखें, operating activities are principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing activities and financing activities। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज include all transactions that are not defined as investing or financing activities।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरली, अभी बेटे मैं सब बताता हूं, जनरली इन्वॉल्व, लेकिन आप लिख लो पहले, जनरली इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरी, प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरी goods and services, goods and services, करेक्ट। अभी मैंने कहा मैं सब एक्सप्लेन करता हूं, चिंता मत करें, पहले आप मेरे साथ लिख लें। ये तो मैंने अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में लिखा, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में भी लिख लें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको मालूम ही है ना क्या होती है, इन्वेस्टिंग, लेकिन लिखना पड़ता है थोड़ा, एक बार लिख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, शुरू में थोड़ा बोरिंग तो है ही, लेकिन क्या करें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन, आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, and disposal of long-term assets, long-term assets and other investments and other investments not included under cash equivalents, cash equivalents। बस थोड़ा सा पहले आप लिख लें, फिर हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। लिख लिया आपने ये? अरे जरा सेंटर्स को बोलो लॉग इन हो जाए भाई फटाफट। हेलो, बाहर अगर मुझे सुन रहे हैं तो जरा इनको बोलो कि लॉग इन हो जाए। ये लक्ष्मीनगर सेंटर और लखनऊ सेंटर क्यों नहीं लॉग इन हो रहा अभी तक? उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखे बेटे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, स्क्रीन का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें, विजुअलाइजर में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दैट result in changes in the size and composition of owner's capital and borrowings of the enterprise, borrowings of the enterprise। लिखा बेटा आपने? लिखे फटाफट।
अगर आपने ये लिख लिया है, आइए जी, आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स। अब बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की जो नॉर्मल गतिविधियां हैं, सेल, परचेज, सप्लायर से गुड्स खरीदना, बेचना, सप्लायर को पेमेंट करना, कस्टमर से पैसे रिसीव करना, ये सब हमारी नॉर्मल बिजनेस गतिविधियां हैं। जब आप और मैं कोई बिजनेस करते हैं तो ये नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज सम्मिलित करी जाती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज सम्मिलित हो सकती हैं? जैसे कि ए, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ goods and services, goods and rendering of services. B, cash receipts from royalties, cash receipts from royalty, fee, commission, and other revenue. आपका बिजनेस है, बिजनेस की स्ट्रांग इमेज है, आपको रॉयल्टी भी मिल रही है, आपको फी भी मिल रही है, आपके नाम पर आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये सब नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाता है। या याद रखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एक तो नॉर्मल एक्टिविटी शामिल हैं और ऐसी एक्टिविटीज भी शामिल हैं जो फाइनेंसिंग के अंदर और इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं आती। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सी, cash payment to supplier of goods, cash payment to supplier of goods and services. D, cash payment to and on behalf of employees E, cash receipts and payments. Cash receipts and payments by an insurance enterprise for premiums correct, comma, claims and other policies.
F. Cash payments and refunds. Cash payment and refunds of income tax G. Cash flows arising from dealing in securities when enterprise holds securities for such purpose. समझ में आया? तो इतनी सारी एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब दो हैं, एक तो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी और कोई भी ऐसी एक्टिविटी। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब सेल करना कैश में, क्रेडिट में, डेटर से पैसा लेना देना, इसी तरह सप्लायर से माल खरीदना, उनको पेमेंट करना, एम्प्लॉयज को पेमेंट करना, रोजमर्रा के खर्चे, ये तो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है ही है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी भी शामिल होती हैं जो बाकी एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, जैसे रॉयल्टी फी रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, तो या डिस्काउंट हमें रिसीव हो जाए, तो ये तुमने देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी नहीं आता है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी नहीं आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटी शामिल नहीं है, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज भी शामिल हैं जो दूसरी मेजर एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं है। आइए थोड़े से एग्जाम्पल हम देख लें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। मुझे मालूम है कि आपको लिखना पड़ रहा है, लिखने में आप बच्चों को आफत आती है, लेकिन क्या करें। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भी कुछ एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिजनेस की वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हैं जो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट से डील करती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होंगी? ए, कैश पेमेंट फॉर acquisition of fixed assets including intangibles। आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, उसकी पेमेंट करी, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, इस चीज का आपने ज्यादा ख्याल करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, उसके बाद जरा मैं पेज सेट कर लूं। और विजुअलाइजर में थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ता है ना यहां पर। हाँ जी, बी, कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को बेच करके जो आपको पैसा मिलेगा वो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते थे और लिखोगे, करेक्ट। सी, कैश पेमेंट्स to acquire
shares, warrants, or debt instruments, debt instruments of other enterprises and interest in joint ventures मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, वारंट्स खरीदे, या मैंने किसी दूसरी कंपनी में जॉइंट वेंचर, जैसे मान ले ए और बी नाम की दो कंपनी हैं, करेक्ट, तो बी मेरी जॉइंट वेंचर है, तो मैंने उस कंपनी के भी जो शेयर्स वगैरह खरीदे उसको भी मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, करेक्ट, इन जॉइंट वेंचर। फिर उसके बाद डी, कैश रिसिट्स, फ्रॉम disposal of shares, warrants, or debts instruments of other enterprise. E, cash advances, and loans, cash advances and loans made to third parties. F, cash payment for future forward option and swap contracts. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल वर्ड्स में सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा अगर हम पेमेंट करते हैं शेयर्स वगैरह एक्वायर करने के लिए किसी दूसरी एंटरप्राइज में या जॉइंट वेंचर्स में, तो वो भी इसी के अंदर आएंगे, ये भी ध्यान रखना है, करेक्ट। शेयर्स को बेच करके जो पैसा आएगा वो भी इसी के अंदर आएगा। ये चीजें कई बार बच्चों को पता नहीं होती, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। आइए जी, फिर हम क्या लिखेंगे। देखो बेटे, एक तो शेयर को बेच करके पैसा आता है, एक शेयर इश्यू कर करके पैसा आता है। शेयर जो इश्यू कर करके पैसा आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, करेक्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखें, अरे जरा ये पता करना कि सेस पर ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक। लक्ष्मी नगर और ये दोनों का पता ही नहीं लग रहा। अरे बाहर जो स्टाफ है जरा पता करो तो,
ये बाहर से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है भाई. Lot of noise is coming inside the room. Please pay attention. ये तीसरी बार कहा जा रहा है. बहुत ज्यादा आवाज आ रही है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. और जरा पता करना भाई ये सेस पे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग. फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Cash proceeds from issuing shares. अब देखो बेटे ये जो है कैश हमारे पास आ रहा है. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. तो यहां शेयर्स को बेच के पैसा नहीं आ रहा. अगर शेयर्स को बेच के पैसा आएगा तो ये पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना होगा, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. लेकिन अगर मैं शेयर्स इशू करूंगा तो तब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. बात समझ में आई. उसके बाद बी, कैश पेमेंट टू एक्वायर or redeem shares, debentures. C, cash proceeds from issuing debentures loan notes bonds mortgages and other short-term and long-term borrowings. long-term borrowings. लो जी, मेन जो मेरा काम था वो तो मैंने तुम्हें पहले ये लिखाना था. पहले आप इसको अच्छी तरह से लिख लें. करेक्ट. अब मुझे कुछ चीजों पे चर्चा करनी है जो मैं करता हूं, और मैं 2 मिनट में अभी चर्चा स्टार्ट करता हूं. मैं जरा बाहर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे करके आ रहा हूं क्योंकि ये बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं. 2 मिनट बेटे आप वेट करें. 2 क्या 5 मिनट वेट करना पड़ेगा. मैं अभी आकर के जरा क्लास रीस्टार्ट करता हूं. ठीक है.
देखो तो तुमने कितना हल्ला कर रहे हो, कितना हल्ला कर रहे हो। अगर हम चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अरे यार एक काम करना पड़ेगा। लिखने का काम तो हो गया। आज 8 तारीख भैया कौन जीता? हेलो हमको पिला दिया करो। मैंने 27 की छुट्टी दी थी। 27 और 3 और आज 9 दिन, 13 दिन के बाद छुट्टी मिल रही मुझे। वीक में एक दिन छुट्टी मिलती है ना सर। वीक में कभी मंडे हो जाती तो अगली बार सैटरडे फ्राइडे हो जाती। ये मतलब नहीं, ये मतलब सर इस वीक में कब छुट्टी है? इस वीक के आपकी संडे छुट्टी, अगली वीक की छुट्टी और ठीक है सर बात। बाद में दे दूंगा ना आपको। ये सब डिजिटल किए हैं। 5 मिनट और टाइम से समझ लूंगा ना। 2 बजे आए खाते हैं। 5 मिनट का कैसे नहीं आते। मैं ईमानदार से बताना, मुरारी में कभी जरूर नहीं खाना चाहिए। अच्छा बच्ची अरे रहने पे दे। मंगा लेते हैं। लड़का भाई बेटा का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सब लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। मुरारी में क्या करना? 5 मिनट और टाइम दे देंगे ना। क्या तुम नाम लगा नहीं मतलब ये क्या बात हुई? मेरे को टालने का बस इससे बढ़िया तरीका काम करने की ये पंडित जी रहते हैं ना, हम जिससे बहुत गलत फहमी में रहता है कि सबसे ज्यादा वही देता है। सब
पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे कि बच्चे हैं भी नहीं। सर पता है उसको क्यों नहीं लग पा रहा हूँ सर, क्योंकि ये जिस दिन छुट्टी पे रहते हैं ना उस दिन ये उससे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि इधर जाना उधर जाना। लॉगिन करवाओ यार, इसमें तो क्लास को बीच में छोड़नी पड़ेगी मेरे को, ये इसमें मजा ही नहीं आ रहा बच्चों से बात नहीं हो पा रही, ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। अरे जल्दी करो भाइयों, अरे यार तुम अपनी भी घड़ी क्या सेस पे लॉगिन है कि नहीं है, क्या है पूछो जरा इनसे क्या है, ये बच्चे हैं कि नहीं है, कहना तुम सही से लॉगिन क्यों नहीं हो रहे हो क्या? खाली पढ़ाई जा रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा। ये बताओ ये चीज अब हो रही, उनको सबको पता है सर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रही है लॉगिन? सबको दे दिया गया है, क्यों नहीं करते हैं लॉगिन? सर हटाना वो ये यूआरएल डाला कि भाई अगर आप लोग लॉगिन नहीं होंगे तो मुझे क्लास फिर यहाँ पर रैप अप करनी पड़ेगी। प्लीज गेट द लॉगिन एज सुन एज पॉसिबल। सर इसका यूआरएल और ये यूआरएल आपके सामने लिखा भी हुआ है। इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली कंटिन्यू द क्लास इन दिस वे। गूगल क्रोम पे ये डालें, ये आईडी डालें, ये वाले 125.1 गूगल क्रोम पे ये वाली आईडी आपको डालनी है, फटाफट लॉगिन हो। अगर 5 मिनट में आप लॉगिन नहीं होते हैं तो मुझे क्लास यहीं पर रैप अप करनी पड़ेगी। I will wait for 5 minutes, otherwise I will have to finish up the class here itself. लक्ष्मी नगर तुम इतनी देर में लॉग इन हो गए तो कैसे पता लगेगा? ये रिस्पेक्टिव सेंटर्स जितने भी हैं उनसे कई बार ये रिक्वेस्ट करी जा चुकी है कि टाइम से आप लॉग इन हुआ करें। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लास लेने में।
क्या हो रहा है? लॉगिन नहीं हो रहा है क्या? वो तो मेरा लक्ष्मी नगर है ना, कहाँ है? लक्ष्मी नगर कहाँ है? देखो तो सही ना, तुम देखो यार, मैं क्या देखूं? उसको पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्यों लॉगिन क्यों नहीं करते? लखनऊ भी नहीं आया अभी तक। कि पहले एक ना क्लास स्टार्ट करने से पहले करा करो यार ये चीज। अगर हम बीच में चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। सर ये जो है ना, ये सर टास्क पूरा ना सर एकेडमिक वालों का होता है। तो- सेंटर्स को तो एकेडमिक वाले कौन? अभी आते ही नहीं सर, एकेडमिक्स में है ही नहीं कोई, एकेडमिक्स में यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं सर। हमेशा पहले क्या होता था सर, एक बंदा बैठता था जो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करता था। वो हमने क्लास दिया, हमें एक बार चेक कर दिया, क्लास हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपका क्लास आ गया। बस हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, तो एकेडमिक वालों का काम है ना ये। जी सर, हाँ, लॉगिन सर। करवाना है। फिर जो मैनेजर होते हैं जो कंटिन्यू हेलो? सेंटर के मैनेजर से या उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। शाश्वत एक मिनट आशीष की बार बार फोन कर रहा है। अरे उसको मैं कॉल कर रहा था, लग ही नहीं रहा। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, याली क्लास यहीं बंद कर दो। नेक्स्ट टाइम लक्ष्मी नगर आ गया सर। नहीं, कोई बात नहीं, आने दो लक्ष्मी नगर को, कोई बात नहीं, क्लास यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टाइम पहले इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कोई मैनेजर होगा तो तभी उससे यहाँ पर क्लास होगी, ऐसे का कोई फायदा। सेल्फ रेस्पॉन्सिबल लेके खुद लॉगिन। हाँ, तो खुद लॉगिन करना चाहिए ना, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास फिनिश अप कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस एक्चुअली वी हैव टू कर्टेल द टुडेज क्लास इटसेल्फ। बेटे मेरे को आज की क्लास यहीं पर फिनिश अप करनी पड़ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैंने आज का सेशन यहां पर कर्टेल करा है, आप इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखनी होती हैं। कई बार टाइम से सेशन सेस पे नहीं आ पाते हैं लोग, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि बच्चे वहां पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो इस बात को पहले मैं देखूंगा इटेन के मैनेजमेंट से कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां पर है। ठीक है, आई विल डेफिनेटली होल्ड डाउन ए मीटिंग विद यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल ट्राई टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल विच वी हैव लॉस्ट आउट टुडे। ओके, चलो जी बंद कर दो इसको।